اب خبروں کی تفصیلات سب سے پہلے بات کریں خام مٹیریل کی درآمد پر بندش سے ملک میں موجود خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک روز میں پی وی دھاگے کی قیمت 5 روپے بڑھ گئی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر پر مندے کی وجہ سے کاروبار کرنا مشکل ہونے لگا۔ خام مال کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ عالمی آرڈرز کی تکمیل میں آڑے آنے لگا۔ ایک روز میں پی وی دھاگا 5 روپے جبکہ پولیسٹر فائبر 10 روپے کلو مہنگا ہو گیا۔ خام مال کے مرکزی جز مہنگے ہونے سے پورا سیکٹر متاثر ہے۔ آرڈرز کی تکمیل صنعت کاروں کے لیے چیلنج بن گئی۔ ایک ہفتے میں پی وی دھاگے کا بورا 24,500 سے 29,000 روپے کا ہو گیا۔ زونل چیئرمین ایپٹما نوید گلزار کہتے ہیں خام مال مہنگا اور شارٹ ہونے سے کاسٹنگ نہیں ہو رہی۔ کیونکہ ایلسیاں نہیں کھل رہی اس لیے پاکستان کے جو ہے ملیں وہ امپورٹ نہیں کر سک رہی، نہ ہم پولیسٹر امپورٹ کر سک رہے ہیں نہ ہم کاٹن امپورٹ کر سک رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے اپنی پرائسز بہت حد تک انکریز کر دی ہیں۔ صنعت کار کہتے ہیں ایک ہفتے میں 307 روپے کلو والا پولیسٹر فائبر 340 روپے کلو ہو گیا۔ یہی حالات رہے تو کاروبار کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ سرکار آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر، صنعت کاروں تاجروں کے لیے ایک اور بری خبر۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط مان کر سیلز ٹیکس 17% سے 18% کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ سیلرز ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ جنرل سیلز ٹیکس 17% سے بڑھا کر 18% کیا جائے گا۔ فیصلے پر تاجروں اور صنعت کاروں کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کہتے ہیں سیلز ٹیکس بڑھنے سے پیداواری لاگت مزید بڑھے گی۔ ہماری اشیاء خرد و نوش ہے اس کے اوپر بھی 17% سیل ٹیکس ہے۔ اب یہ 17 کا بھی 18% کرنے جا رہے ہیں۔ یار یہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا؟ کس طرح سروائیو کریں گے ہم لوگ؟ جو بجلی کے اوپر سبسڈی تھی وہ 20 روپے کی بجائے اب اس کو بھی 32 روپے یا 42 روپے کرنے جا رہے ہیں۔ اسلم بھلی نے مزید کہا کہ حکومت نے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ سرمایہ کار حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہے جبکہ یہاں حالات دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ سارے ملک کا کاروباری زندگی بند ہو جائے اس سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 17% سے 18 ہی نہ کریں۔ اور یہ جو بجلی کے ریٹ بھی بڑھانے جا رہے ہیں اور پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھانے جا رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول آج 3 دن سے 4 دن سے پورے ملک کے پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور پیٹرول لوگوں کو نہیں مل رہا۔ صنعت کاروں کے مطابق وفاقی حکومت اپنی پالیسیوں سے انڈسٹری کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ امپورٹ کی بندش ایل سی نہ کھلنے سے آٹو اسپیئر پارٹس کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو گیا ہے۔ آٹو پارٹس کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا۔ امپورٹ بند ہونے سے تاجروں کے تحفظات میں اضافہ۔ کہتے ہیں گاڑیوں کے پارٹس کی شدید قلت ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں جبکہ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ چیئرمین بلال گنج مارکیٹ حاجی کاشف کہتے ہیں ایل سی نہ کھلنے سے آٹو پارٹس کا بحران پیدا ہو رہا ہے، قیمتوں میں 1000 گنا اضافہ ہو چکا ہے، کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے جبکہ خریداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ 100 پارٹس جو ہے اویلیبل نہیں ہے، تو دوسرا ان کی جو قیمتیں ہیں جو بڑھ کے کوئی ہوتا نا کوئی ڈبل ہو گئی یا ٹرپل ہو گئی، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ تو 1000% سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ 5000 والی چیز کا ریٹ 50,000 سے اوپر چل گیا ہے اور لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں حکومت ایل سیز بروقت کھولنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ مشکلات میں تھوڑی کمی ہو۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ خود ساختہ بحران، منافع کا لالچ یا بڑھتی قیمتوں کی افواہیں، ڈویژن میں متعدد پیٹرول پمپس پر سپلائی بند ہو گئی۔ فیصل آباد میں اہم شاہراہوں پر پیٹرول پمپس بند ہو گئے۔ پیٹرول کی قلت نے شہریوں کو خوار کر دیا۔ شہریوں نے کہا کہ جس پمپ سے پیٹرول ملے وہاں بھی 200 سے زیادہ کا نہیں ملتا۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائیں۔ 3 پمپ سے ہم ہو کر آ رہے ہیں، کدھر ایک سے بھی نہیں ہمیں مل رہا۔ ادھر آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب ہم عوام کہاں جائے؟ عوام کام پہ جائے یا کہ ادھر پمپ کا منہ دیکھے؟ کیا کرے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں موجود 270 پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی سپلائی بند ہو گئی۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ انتظامیہ پیٹرول کی دستیابی یقینی بنانے میں ناکام ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت پیٹرول کی قلت پر سخت نوٹس لے کر عوام کی مشکلات دور کرے۔ پیٹرول نہیں مل رہا جی، پیٹرول کی بہت قلت ہے۔ صبح کو بچوں کو چھوڑنے جانا ہوتا ہے تو نہیں مل رہا پیٹرول، بہت قلت ہے۔ تقریباً کوئی 100 کا صبح تیل ملا ہے، وہ 100 کا بھی ہم نے اسی طرح مثلا یوز کر لیا ہے۔ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، پیسے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی بندہ چیز نہیں دے گا۔ جنگ میں عوام کو پیٹرول تو ملا لیکن تھوڑا تھوڑا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کی افواہوں کی وجہ سے متعدد پیٹرول پمپس نے تیل کی فراہمی بند کر دی۔ پیٹرول کی فراہمی بند ہونے سے شہریوں کی مشکلات
पंप्स पर दबाव बढ़ने से पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतारें लगी। पेट्रोल पंप से महदूद मिकदार में पेट्रोल की फराहमी जारी है। सुबह का लाइन में लगा हुआ हूँ, अब जाके इस एक पेट्रोल पंप पे अवेलेबल है, बाकी अदर सारे पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। इतनी परेशानी है कि घर से जब निकलते हैं ज़हनी टेंशन बनी होती है कि पेट्रोल होगा तो आगे काम पे निकलेंगे या वापस आना पड़ेगा पैदल। चिन्योट में भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की अफवाहों पर पंप मालकान ने पेट्रोल फरोख्त मुख्तसर कर दी। पेट्रोल नायाब हुआ तो पंप्स पर भी रश लग गया। शहरी परेशानी का शिकार जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल पंप मालकान ने लालच में पेट्रोल स्टॉक करना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर 200 रुपए से जायद का तेल नहीं मिल रहा। जो है जी 1 लीटर पेट्रोल मिला है वो भी इनकी मेहरबानी है इस पेट्रोल पंप वालों की, वरना दूसरे सारे शहर वाले जो है ना वो पेट्रोल बंद किए जिसकी वजह से रश लग रहा है। उधर गोजरा में भी पेट्रोल की कमी का मसला हल न हो सका। कई पंप्स ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी। पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दूर दराज से आए शहरी महसूर होकर रह गए। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान की खामोशी पर सवाल उठा दिया। शहरियों का कहना था कि कई घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की अफवाह की वजह से फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग, चिन्योट और गुजरा के पेट्रोल पंप पर सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। पेट्रोल पंप पर तेल होने के बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अवाम ने इंतजामिया से पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएं, मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत तबाही के दहाने पर जा पहुंची है। कभी डीजल का बहरान तो कभी नहरी पानी की बंदिश। चिन्योट के काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगीं। डीजल के बहरान ने खेतों की पैदावार मुश्किल बना दी। किसानों ने मकई, कमाद और चारा समेत दीगर फसलों के शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। कहते हैं बिजली, खाद, पानी और डीजल नायाब, ज़राअत की कमर तोड़ दी गई। मकई गढ़नी, कमांद को गढ़ना बस ना डीजल मिलता पाया ना को खाद मिलती पई। हम सारे चिन्योट पेट्रोल पंप हैं और फिर फुर के आ गए और ठेके और हर शे बहुत महंगाई है और लेट होती पई नहीं। काश्तकारों ने कहा कि गंदम की काश्त के वक्त खाद दस्तयाब नहीं थी, अब डीजल नहीं मिल रहा और नहरी पानी भी बंद है। किसान जलीलो ख्वार होकर रह गया है। दम तोड़ती ज़राअत बारे हुकूमती तरजीहात समझ से बाला तर है। बहरान में गिरे किसानों ने हुकूमत से किबला दुरुस्त करने और डीजल की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट के पेट्रोल पंप्स पर छापे। रोजाना रोड, शीशावतनी रोड समेत तहसील भर में पंप्स पर पेट्रोल की मिकदार को चेक किया। एसी गुलाम मुस्तफ़ा जट का कहना है कि तमाम पंप्स पेट्रोल दे रही है। पेट्रोल सील ना करने वालों पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहरी अफवाहों पर कान ना धरे। पेट्रोल वाफिर मिकदार में मौजूद है। पेट्रोल सेल ना करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि तहसील समेत सब पंप्स पर पेट्रोल के मिकदार को चेक किया है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट की पेट्रोल पंप्स पर छापे। रोजाना रोड, शीशावतनी रोड समेत तहसील भर में पंप्स पर पेट्रोल के मिकदार को चेक किया। एसी गुलाम मुस्तफ़ा जट का कहना है कि तमाम पंप्स पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल सेल ना करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहरी अफवाहों पर कान ना धरे। फैसलाबाद के पोश इलाके सूसा रोड पर बड़े ब्रांड स्टोर, सैनिटरी स्टोर्स, होटलों, गाड़ियों के शोरूम्स और मुख्तलिफ दफातर की भरमार, मगर 71% ताजरों ने 2022 में टैक्स ही नहीं दिए। फैसलाबाद के पोश इलाके सूसा रोड पर बड़े ब्रांड स्टोर, सैनिटरी स्टोर, होटलों, गाड़ियों के शोरूम्स और मुख्तलिफ दफातर की भरमार, मगर 71% ताजरों ने 2022 में टैक्स ही ना दिया। सनती शहर के पोश इलाके सूसा रोड पर ताजरों की अक्सरियती टैक्स अदायगी से गुरेजा। FBR के पास इस इलाके से 1400 ताजर रजिस्टर हैं। 1400 में से 1000 ने टैक्स अदा करना तो दरकिनार इनकम टैक्स रिटर्न ही ना जमा करवाई। 400 दुकानदारों और ताजरों ने 110 मिलियन रुपए टैक्स अदायगी की। टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद इसके अलावा है। दूसरी जानिब FBR हुकाम का कहना है टैक्स अदायगी ना करने वाले और नॉन फाइलर को सेक्शन 114 के तहत नोटिस भेज दिए हैं। कानूनी जिम्मेदारी अदा ना करने वालों को जुर्माना आयद किया जाएगा। जंग में मौसम तब्दील हो गया, मगर महकमा सुई गैस की रविश न बदली। गैस लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। सुई गैस की मुसलसल बंदिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। खवातीन कहती हैं गैस ना होने से घर का खाना खाने को तरस गई हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि रोज बाहर से खाना नहीं खरीद सकते। शहरियों का कहना था कि पहले ही राशन पूरा नहीं होता, अब महंगी LPG भी खरीदना पड़ती है। गरीब आदमी कहाँ जाए। सुबह के औकात में
2 घंटे के लिए अगर गैस आती है, इसी तरीके से दोपहर के औकात में भी और शाम के औकात में, और बाकी जितने औकात कार हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब लोड शेडिंग की कोई ज़रूरत है। और फिर आप लोगों को पता है कि इन्होंने लोड शेडिंग इसके सुई गैस के रेट्स वगैरह भी बढ़ा दिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम और नास के साथ ज़्यादती। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की मुसलसल फराहमी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबाद के इलाके सुलेमानी कॉलोनी के मकीन गैस से महरूम। गली नंबर 7 और गली नंबर 8 में गैस बंद है। इलाका मकीन कहते हैं गैस बंद होने से शदीद परेशानी का सामना है। महकमा सुई गैस वाले 5 और 6 नंबर गली में गैस लीकेज ठीक करने आए, साथ ही गली नंबर 7 और 8 का कनेक्शन बंद करके चले गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि घरों में लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उन्होंने आला हुकाम से सूरत हाल को नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लिया के फोट नहीं कर सकते, इतनी मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ी दबका लोग हैं, 2 दिन हो गए हैं, अब हम मांग के पैसे लेके तो खाना ले आ रहे हैं। मुश्किलात के सामने आप क्या कहेंगे? आप जी 2 दिनों का गैस नहीं होती पई, रोटियां न्याणे भुखे बैठे ने, ते जो टैलीफोन करते हैं वो 24 घंटे तो नहीं, तो इंतजार को 24 घंटे इत्थे भुख ना मरन डे गए हैं। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ, ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਗੈਸ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪੱਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ नहीं खा सकते। आसमान से गिरा खजूर में अटका, खुदा खुदा करके फेस्को में ट्रांसफार्मर्स आए तो डिमांड नोटिस में 2 गुना इजाफा हो गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, खुदा खुदा करके फेस्को में ट्रांसफार्मर्स आए तो डिमांड नोटिस में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। महंगे डिमांड नोटिस के बाद सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई। फेस्को ने 1000 से ज्यादा सार्फिन को इजाफे के साथ रिवाइज डिमांड नोटिस भेज दिए। 6 माह कबल ट्रांसफार्मर की डिमांड नोटिस अदा करने वाले सार्फिन को रिवाइज डिमांड नोटिस भेजे गए हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि मटेरियल महंगा होने के बायस डिमांड नोटिस की कीमतें बढ़ाई हैं। उधर फेस्को में लाखों रुपए की डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियों का इंकशाफ। बोगस अदायगियां, नाकिस मटीरियल, सारिफ को फायदा या नुकसान, 1,34,000 किसकी जेब में गए? फेस्को चिन्योट का स्कैंडल सामने आ गया। चिन्योट सब डिवीजन ऑफिस में 1,34,000 की बोगस अदायगी का डिमांड नोटिस सामने आ गया है। बोगस अदायगी वाले डिमांड नोटिस के लिए गैर कानूनी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। सिटी 41 की खबर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान का एक्शन। चिन्योट सब डिवीजन डिमांड नोटिस की बोगस अदायगियों पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। इंक्वायरी कमेटी में FBR के अफसरान भी शामिल। मलिक तहसीन अवान का कहना था कि डिमांड नोटिस के लिए बोगस अदायगियों में मुलविस अमले के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जंग में तरक्याती कामों के हवाले से अहम खबर। हुकूमत पंजाब ने डिविजनल कमिश्नर से तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर ली। डेप्यूटी कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका इजलाह की रिपोर्ट कमिश्नर को इरसाल करेंगे। जंग में तरक्याती कामों के हवाले से अहम खबर। हुकूमत पंजाब ने डिविजनल कमिश्नर से तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर लीं। डिप्टी कमिश्नर्स अपने मुतल्लिका इजलाह की रिपोर्ट्स कमिश्नर को इरसाल करेंगे। डिवीजन भर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में 1,75 अरब रुपए की लागत से 557 मंसूबों पर काम रुका हुआ है। इनमें फैसलाबाद के 74 अरब रुपए के मंसूबे, झंग में 28 अरब रुपए के मंसूबे, चनोट में 6 अरब जबकि टोबा टेक्सिंग में 12 अरब रुपए के मंसूबे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत पंजाब तरक्याती कामों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। झंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी। 36 अजला में झंग 28वें नंबर पर आ गया। झंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी। 36 अजला में झंग 28वें नंबर पर आ गया। 18 हजारी की सूरत हाल सबसे बदतर। झंग के स्कूलों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने सरबराहान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 18 हजारी के 35% स्कूलों में क्लासरूम, टॉयलेट्स और ग्राउंड्स की हालत खस्ता है। बेशतर स्कूलों में हाथ धोने के लिए साबुन तक मैसर नहीं। महकमा तालीम ने सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए स्कूल सरबराहान को फौरी इकदाम करने की हिदायत की है। दूसरी तरफ फैसलाबाद के 52 सरकारी स्कूल में 2 साल बाद भी साइंस लेबोरेटरीज ना बनी। स्कूलों में मैट्रिक का एक सेशन मुकम्मल होने को आ गया, लेकिन तलबा साइंस की अमली तालीम के लिए सहूलियात से महरूम रहे। पंजाब भर में मिडिल से हाई अपग्रेड होने वाले स्कूलों में साइंस लेबोरेटरीज का कयाम न हो सका, जिसके बाद साइंस के तलबा अमली तालीम से महरूम है। तलबा का कहना है 1 अप्रैल से मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। लेबोरेटरीज न होने से प्रैक्टिकल इम्तिहानात में मुश्किल पेश आएंगी। असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत से फौरी साइंस लेबोरेटरीज के कयाम का मुतालबा किया है ताकि अमली तालीम हासिल करने में आसानी हो। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस के तलबा की तालीमी कारकर्दगी चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाएगा।
सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस के तलबा की तालीमी कारकर्दगी चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने सरकारी स्कूलों में क्लास 4 के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों में क्लास 4 के इम्तहानात 16 फरवरी से शुरू होंगे। बच्चों से इंग्लिश, उर्दू, रियाजी और साइंस का पेपर लिया जाएगा। स्कूलों में 16 फरवरी को इंग्लिश, 17 फरवरी को उर्दू का पेपर होगा। स्कूलों में 18 फरवरी को रियाजी और 20 फरवरी को साइंस का पेपर लिया जाएगा। स्कूल में 21 फरवरी को इंग्लिश, उर्दू लिखने, सुनने और बोलने का टेस्ट लिया जाएगा। चौथी जमात के अलावा मखसूस स्कूलों में तीसरी, छठी और 7वीं क्लास के बच्चों से भी टेस्ट लिया जाएगा। उधर तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के इम्तिहानी ड्यूटियां करने वाले उस्ताजा मुआवजे से महरूम। सालाना और ज़िमनी इम्तिहानात में ड्यूटियां करने वाले 5000 से ज़ायद उस्ताजा को ताहाल मुआवजा मिलने का इंतजार है। फैसलाबाद डिवीजन में साल 2022 में 5000 से ज़ायद उस्ताजा ने फराइज सरंजाम दिए थे, लेकिन अभी तक उन साजा को मुआवजे नहीं मिल सके। एलिमेंट्री स्कूल टीचर एसोसिएशन के सूबाई सदर अब्दुल गफूर ने कमिश्नर फैसलाबाद और चेयरपर्सन बोर्ड समेत तालीमी बोर्ड हुकाम से उस्ताजा के मुआवजे फौरी अदा करने का मुतालबा किया है। उस्ताजा कहते हैं कि मुआवजा ना मिला तो आइंदा इम्तहानात में ड्यूटियां नहीं देंगे, जबकि तालीमी बोर्ड के तहत 1 अप्रैल से मैट्रिक इम्तहानात 2023 शुरू हो रहे हैं। फैसलाबाद की इंतजामिया बेहिस हो गई। प्लान क्रिकेट टूर्नामेंट नजरअंदाज। नाबीना क्रिकेट खिलाड़ी मायूसी का शिकार हो गए। नाबीना अफराद के बार बार बुलाने पर भी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद न आए। खतूत भी नजरअंदाज कर दिए गए। सदर प्लान क्रिकेट फैसलाबाद मोहम्मद दाऊद का कहना था कि बारहा खतूत लिखकर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत इंतजामिया को इफ्तिताही तकरीब समेत पूरे इवेंट में मदऊ किया। दावतनामा भेजने के बावजूद कोई शरीक ना हुआ है। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो ब्लाइंड क्रिकेटर दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। मैंने ना सिर्फ हमने उनको लेटर लिखे ओपनिंग पे, डीसी साहब को भी, कमिश्नर साहबा को भी, लेकिन कोई भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत तकलीफदेह होती हैं कि यार ये भी आपके मुल्क का हिस्सा हैं। आप अभी आपको कोई और बुलाए तो आप हर फंक्शन पे, हर जगह पे उठ के जाएंगे सिर्फ इसलिए कि ये स्पेशल लोग हैं, इनको आपकी ज़रूरत है, आपको हमारा साथ देना चाहिए। दूसरी जानिब नो तैनात डीपीओ चिन्योट वसीम रियाज की जिला भर के पुलिस अफसरान से तारुफी मुलाकात। जंग में भी नो तैनात डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने अहम शख्सियात से मुलाकात की। नए डीपीओ चिन्योट वसीम रियाज खान की जिला भर के पुलिस अफसरान से तारफी मुलाकात। इजलास में एसपीज, डीएसपीज, एसएचओज, तफ्तीशी अफसरान शरीक हुए। डीपीओ ने अपनी तरजीहात के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डीपीओ ने अफसरान को हिदायत जारी की कि किसी भी वकूअ की सूरत में FIR का फौरी इंदराज यकीनी बनाया जाए। कोई भी शख्स गैर कानूनी हिरासत में न हो। अवामुन्नास को दफातर थाना में बिला वजह इंतजार न करवाया जाए। उनका कहना था कि थानों से टाउटों के खात्मे, करप्शन, बदइखलाकी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाए। जंग में भी नो तैनात डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने अहम शख्सियात से मुलाकातें की। फैसलाबाद से आए क्राइम सीन यूनिट के 2 रुकनी वफ्द ने डीपीओ मलिक तारिक महबूब से मुलाकात की। क्राइम सीन यूनिट की टीम ने बताया कि वारदातों में मौके से शवाहिद गायब होने से तफ्तीश बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ पाती। नौ मुंतखब सदर बार मुनीर संदाना ने भी वकला के वफ्द के साथ डीपीओ मलिक तारिक महबूब से मुलाकात की। साबिक सदर हैदर अली नांगा और दीगर वकला ने डीपीओ को जंग में खुशामदीद भी कहा। डीपीओ मलिक तारिक महबूब का कहना था कि अवाम के ताउन से जंग में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाएंगे। उधर सीपीओ फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी की जेर सदारत भी क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सदर और जड़ावाला डिवीजन के अफसरान SHOs शरीक हुए। मीटिंग में तमाम थाना जात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद महमूद हमदानी ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गश्त और नाकाबंदियों के निज़ाम को मजीद फाल करके अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए। इन्होंने जेर तफ्तीश मुकदमात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करके मजलूम को जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी का भी हुक्म दिया। वज़ीर तवानाई पंजाब SM तनवीर का फेडमिक का दौरा। CEO फेडमिक तनवीर जब्बार और दिगर ओहदेदारान से मुलाकात की। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर ने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का दौरा किया। फेडमिक, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और स्पेशल इकनॉमिक जोन के तवानाई से मुतल्लिका मसाइल पर बातचीत की गई। और वो ये 4005 एकड़ को हमने ऑलमोस्ट सारा बेच उसको इम्प्लीमेंट करा दें। जिन शर्तों में अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी मुझे बता दो, तो ये हम ये ऑफिस में क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं?
फेड पिक नुमाइंदगा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फेड पिक में 156 प्लाट्स में से 148 प्लाट सेल हो चुके हैं, जबकि 125 प्लाट्स पर तामीर इस वक्त जारी है। 360 मेगावाट से हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। 25 मेगावाट MMCFT से गैस अवेलेबल है, बाय द एंड टू 40 MMCFT से अवेलेबल होगी। वैल्यू एडिशन कितनी हमारे पास 100% से कंप्लीट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वैक्सीन भी कंप्लीट है, गैस की रिक्वायरमेंट। निगरान सूबाई वजीर तवानाई SM तनवीर ने कहा कि नई अलाटमेंट समेत प्लाट्स पर फौरी तामीर हमारी तरजीह है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। डिविजनल कमिश्नर सिल्वरसाई से नए तैनात होने वाले डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली उनान कमर ने मुलाकात की है। कमिश्नर सिल्वरसाई ने डेप्यूटी कमिश्नर अली उनान कमर को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर जिम्मेदाराना अमल दरामद कराने की हिदायत की। इसके अलावा अशिया ज़रूरिया समेत खादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक में फ़रोख्त पर सख्त एक्शन लेने का भी हुक्म दिया है। जंग में 9 मिसाइल के असूल और पेट्रोल पंप्स के NOC जारी करने के हवाले से वन विंडो सेंटर कायम करने का फैसला। तमाम रजिस्ट्री ब्रांचेस में बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक के फीस काउंटर कायम किए जाएंगे। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने खुली कचहरी के दौरान शहरियों की दरखास्तों पर समाअत की। टोबा टेक्सिंग में नए तैनात डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद ने चार्ज संभाल लिया। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से तारुफी मुलाकात की। टोबा टेक्सिंग में नए तैनात होने वाले डेप्यूटी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान से मुलाकात की है। इस मौके पर उनका कहना था कि आवाम की खदमात अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफसरान और अमला बर वक्त दफ्तर पहुंचे और सफाई सुथराई का ख्याल रखे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए एहतमाम फैसलाबाद में पैगाम औलिया सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर कादरी, अहमद निसार कादरी और मौलाना आसिफ नदीम चिश्ती ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए आसिफ रजा कादरी ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है। जंग में उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद, तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत और सहाबा इकराम के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। जंग में उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की मेज़बानी साबिक MPA मौलाना मुआविया आज़म ने की। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, मौलाना अब्दुल रहीम नक्शबंदी, मौलाना शफी रहीमी, हबीबुल्लाह नक्शबंदी और सैयद मसदूक हुसैन बुखारी और दीगर उलमा ने कन्वेंशन में शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत और सहाबा कराम के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। साबिक MPA मौलाना मुआविया आज़म का कहना था PDM हुकूमत ने बिल मंजूर किया। उम्मीद है सेनेट में मौजूद PTI के सेनेटर्स भी बिल की तौसीक करेंगे। PDM ने इसको मुतफ़िक़ा तौर पर पास किया है। जब ये सेनेट में जाएगा तो PDM की तमाम जमातों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी अपने मुल्क को फ़िरका वाराना फसादात से महफूज बनाने के इस बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर पास करने में अपना किरदार अदा करेंगे और सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करके मैं समझता हूँ कि इस मुल्क पर एहसान अजीम करेंगे। कन्वेंशन में साने पिशावर के शोधा को भी खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर शोधा पिशावर और तुर्किया में ज़िलज़िले से शहीद होने वाले अफराद के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम में और तुर्की में जो ज़िलज़िला आया है उसमें जितने हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए हैं, या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अजर जजील अता फरमा। उलमा ने कन्वेंशन के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, शरीफ 41, जंग। उधर एलिया केयर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम दी सिटी स्कूल कैनाल रोड कैंपस में नस्ब मुकाबले का इनेकाद किया गया। एलिया केयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम दी सिटी स्कूल कैनाल रोड कैंपस में नज़म मुकाबले हुए। तलबा ने 10 से ज़ायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में पेश की। उस्ताज़ा का कहना था कि तलबा की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए हम नसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। फैसलाबाद के अदबी फ़ज़ा में जहाँ बच्चे सामने आएंगे वहाँ जो माहौल के लिए बहुत ही साजगार है, क्योंकि जिस तरह की आजकल हमारे मुल्क में जो एक फ़ज़ा बनी हुई है, ये शेर उर्दू की फ़ज़ा ने इसे बहुत ही खुशगवार बनाया है। मैं एलिया केयर फाउंडेशन का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने इस माहौल में एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने पेश किया। बच्चे हमारे फूल हैं, उनके लिए खुशबू जो है वो इसी तरह है कि हम उनके अंदर की जो उनकी खूबियाँ हैं उनको उजागर करें और वो हम एक मुआशरे के लिए एक बहुत ही प्यारे फूलों की तरह महकते रहें और हम सब उन पर फ़ख्र कर सकें। तलबा का कहना था कि मुकाबले में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में पेश की। उस्ताज़ा और वालिदैन ने बहुत मेहनत करवाई थी। ऐसे मुकाबलों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुख्तलिफ स्कूल तलबा में हम आहंगी पैदा होती है। सारे तालिब इल्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इससे को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन्हांस होती हैं और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में होती रहेंगी तो इन सब से हमारे जो बच्चे हैं या तो तालिब इल्म हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। हमारे स्कूल में जैसा गज़लों और पोइट्री का इवेंट हुआ तो
میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایونٹ ہم بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرتا ہے اور ہمارے اندر انتظامیہ نے مقابلے جیتنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، CT 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ون ڈے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے، مزید جانیے علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ ون ڈے بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں سندھ بلائنڈ 11 نے خیبر پختونخوا بلائنڈ ٹیم سے میچ جیت لیا۔ خیبر پختونخوا بلائنڈ 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 391 رنز کا ہدف دیا، جبکہ سندھ بلائنڈ 11 نے 5 وکٹوں کے نقصان پر سکور پورا کر لیا۔ محمد محسن نے 187 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد سے پلیئرز کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری ون ڈے بہت کم ہو رہی ہے، ہونا چاہیے کہ ون ڈے میچز زیادہ ہو جائے تاکہ ہمارے نئے پلیئرز کو بھی چانس مل جائے اور وہ بھی آگے جائے۔ بلائنڈ کرکٹ ٹیم 2 دفعہ کی ورلڈ چیمپئن ہے، اس کے علاوہ لاتعداد سیریز جو ہم نے جیتی ہوئی ہیں، اس وقت ٹاپ کی رینکنگ میں پہلے نمبر پہ ورلڈ میں۔ تو اس اسنا میں اگر دیکھا جائے تو ٹیمز آنی چاہیے، ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور بلائنڈ کرکٹ کے میچز جو ہے نا پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے، اس سے ہماری تکنیک میں بہتری آئے گی۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔